any other similar criminal act is said to commit petty organized crime. I think this is the useful weapon in the hands of the police to take care of all this, which was not taken care of either in the Mokoka or the Indian Penal. Next is printing or publishing trial court proceedings relating to sexual offences without permission of the court. It is a punishable offence now. Section 73 has made a provision for this. It prohibits the publication of the proceeding of the court without the permission of court in sexual offences. The next offence is hiring, employing or engaging a child to commit a crime. Now, this has to be considered in juxtaposition with the protection provided under the Juvenile Justice Act. So far, there was no provision, direct provision, on the basis of the circumstances, inferential facts, material. It could be said earlier that yes, behind the child, XYZ is involved. But now, section which IPC, the BNS provides for this offence. Under IPC, there was no provision to prosecute a person who employ or engage a child for purpose of committing offences. I believe there was no such a provision in the Juvenile Justice Act as well. A new section 95 of BNS has been introduced to make hiring, employing, engaging or using a child for committing offences including sexual exploitation or pornography offence as if such person himself has committed the offence. The next offence is abetting commission of the offence in India while being outside India is now an offence under the BNS. Murder by life convict is a new offence in BNS. The Supreme Court, as we know, had struck down existing section 303 of the IPC pertaining to punishment for murder by life convict on the ground that it proved for only single punishment of a death, and the court had no discretion. Now, two alternate punishments of a death or imprisonment for life have been provided to remove the said infirmity, and that section is 104. The next important aspect which has been taken care of is a gender neutrality under BNS. The BNS has introduced gender neutral term. Whoever, instead of any man who, used in section 354B and 354C of the IPC for offences such as assault or use of criminal force to women with intent to disrobe her or voyeurism under section 76 and 77 of the BNS respectively. In offences relating to harboring deserter, the word wife is replaced by spouse. In the exception of this section, thereby it has been made a gender neutral. The offences relating to importation of a person from foreign country has been made gender neutral to cover both boys and girls in section 141 of BNS as compared to the word importation of girl from foreign country as used in section 366B of the IPC. As both boys and girls are procured for sexual exploitation, the word minor girl in section 366 of the IPC has been replaced with the word child in section 93 to 99 of the BNS to cover both male and female children below the age of 18 years, and the offence of procurement has been made punishable. Uniformity has been introduced in the use of expression child throughout the BNS, which is achieved by replacing the expression minor or a child under the age of 18 years with
word child. This may not be, may be contrary to the provisions of, or there is a rather age on this issue. There may be a conflict under the provisions of the POCSO Act and this section. Now the next important is with regard to the topic is with regard to increased penalties, fines, introduction of a mandatory minimum punishment under the BNS. The BNS has also increased the punishment of imprisonment in 33 offences, including murder. As per section 103 of the BNS, the murderer shall be punished with death or imprisonment for life, which means imprisonment for the remainder of a person's natural life, and shall also be liable to fine. Now this is a new addition. Now if you impose a life imprisonment, you have to see the consequences of this with regard to the remission, reduction of the sentence, mercy, etc. I personally feel, considering this mandate, this may not now be available. This may be included in the list of the offences where the person would have no right to ask for remission, claim remission, or accord the remission, or grant the remission. Causing death by rash or negligent act, section 106. The maximum penalty for this offence has been increased from 2 years to 5 years imprisonment. However, if such a death is caused by a registered doctor, then punishment is imprisonment up to 2 years. Hit and run cases, this is a very important provision. But when we read carefully this section, it has taken care of, as we know that if an accident occurs in a public place with a vehicle, without vehicle, the person, the offender, is beaten black and blue by the public because the mob people go violent after the accident. So this section, while introducing this as an offence, has taken care of. Under section 1062 BNS, if a driver causes death of a person by rash or negligent driving and escapes without reporting to the police, it does not say escapes from the spot, to the police officer or magistrate soon after the incident. Now this would be a subject matter of interpretation. What would mean soon after the incident? After 2 days, 3 days? दर्शकों नमस्कार। इस समय में AHN न्यूज़ की टीम आई हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच के उस ऑडिटोरियम में जहां पे हाल ही में एक कार्यक्रम किया गया है, जिसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गोविंद सानप सर आए थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन यहां पे किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये लगातार हो रहा है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से, स्टडी सर्कल के माध्यम से। ये एक नया एक अभिनव उपक्रम भी इसे कह सकते हैं, जिसके तहत आज वकीलों को एक अच्छी शिक्षा देना और साथ ही साथ उनका अच्छा जीवन संवर्धन करना और एक बड़े प्रभाव लाने का काम यह स्टडी सर्कल के इस नए अनोखे उपक्रम के माध्यम से किया जाता है। इस समय में आप देख सकते हैं कि ये तमाम वकीलों की आज वकीलों की संख्या यहाँ पे आई हुई है। और चलिए कुछ यहाँ पे जो वकील हैं उनसे बात करना चाहते हैं। सर, आज जस्टिस सानप साहब जो आए थे उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कही, कौन सी बात आपको ज़्यादा आपने ग्रहण की? जी देखिए, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर की तरफ से हमारा जो उपक्रम है स्टडी सर्कल, उसके अंतर्गत आज जो लेक्चर था श्री जस्टिस सानप साहब का था। उन्होंने जो नए नियम, जो नया लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता, जिसने पुराना कायदा जो था इंडियन पिनल कोड उसको रिपील किया है, उसके जो प्रावधान है उसमें क्या क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस किए गए, उसमें कौन सी पनिशमेंट बढ़ाई गई है, उसके डेफिनेशंस में क्या चेंज किया है, इस सभी बारे में उन्होंने हमें यहाँ पे इनलाइटन किया है। और डेफिनेटली हम जो जूनियर लॉयर्स है, बडिंग लॉयर्स है, उन सब ने इसका लाभ उठाया है। बिल्कुल।
जरूर इसका लाभ उठाने से इनका मानना है। इस समय में हमारे साथ में जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में आज के इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया, ऐसे अधिवक्ता ठाकरे मैडम भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, सर ने बातों बातों में ये भी कह दिया कि किसी ने शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए या कॉपी पेस्ट करके कामकाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या होता है अगर शॉर्टकट और कॉपी पेस्ट किया तो? जी, अभी टाइम के साथ चलते हुए हम एक मॉडर्न दुनिया में हैं। मॉडर्न दुनिया में टेक्नोलॉजी में जो राइज़ हो रहा है उसके कारण सीनियर लोगों का हमेशा ये कहना होता है कि टेक्नोलॉजी को कम से कम यूज़ करो, किताबें ज़्यादा खोलो, किताबों से ज़्यादा रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग मत करो, उसको अपने साथ ले चलो और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करो। कोर्ट रूम्स में बैठो। जूनियर लॉयर्स को हमेशा उन्होंने यही समझाया है कि कोर्ट रूम्स में बैठो, फाइनल हियरिंग के मैटर्स अटेंड करो, सो दैट आपको और आपकी नॉलेज को ये प्रोफेशन में आगे आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल, सर ने ये भी कहा था कि बड़े सपने देखिए और बड़े सपने तभी साकार होंगे जब कुछ बड़ा करने की चाहत रखोगे और उसके ऊपर में पूरी तरह से अमल होगा। क्या आप भी बड़े सपना कुछ देखना चाहिए? जी ज़रूर। सपने कौन नहीं देखना चाहता है, सब देखना चाहते हैं। सबको सक्सेस चाहिए होती है, बट सक्सेस के लिए अगेन जैसे जस्टिस सानप ने बोला था, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क सबको करना है और हम हार्डवर्क के लिए रोज़ कोर्ट अटेंड करें, कोर्ट रूम्स में बैठे, कॉरिडोर्स में ना रहे। इन सब का हम सबको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जूनियर मेंबर्स को। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में ठाकरे मैडम इन्होंने दी है। और भी कुछ अधिवक्ता है उनके पास चलते उनसे जानना चाहेंगे। सानप साहब की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी सानप साहब की कि उन्होंने उनका लाइफ एक्सपीरियंस बताया, कैसे वो जैसे जुडिशरी से हायर जुडिशरी तक आए हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, उनका काम कैसे रहा है। वो स्मॉल कॉज कोर्ट में थे। उन्होंने बताया है कि सिविल की प्रैक्टिस कैसे करना है, ज़्यादा सिविल पर फोकस करिए क्योंकि सिविल में लोग करते नहीं है। ये सब उन्होंने चीज़ें बताई है और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है उनकी। और बाकी बहुत चीज़ें उन्होंने जो बताई है, प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए, बुक्स कैसे पढ़े और क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ों में उन्होंने फोकस किया है। बिल्कुल। जब उन्होंने एक टाड़ा अदालत का जो एक उदाहरण उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो कितना महत्वपूर्ण था? वो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि टाड़ा के जो केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं उसके बारे में जो उन्होंने बताया है कि 725 विटनेसेस उन्होंने एग्जामिन किए वो मैटर में और 1000 एग्जिबिट थे टोटल। तो उनको जब मैटर अलॉट हुआ था, असाइन हुआ था, तो उनको एक डर सा महसूस हुआ था। जब उन्होंने उनके घर पर जाके फैमिली से डिस्कस किया, उसके बारे में बात की, तो उनके फैमिली ने जो सपोर्ट किया है और उन्होंने जो बताया है उससे बहुत एक सपोर्ट मिला है हमको भी। बिल्कुल। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि HBCA जो स्टडी सर्कल के माध्यम से ये जो कामकाज हो रहा है, ये जो एक नया उपक्रम जो लगाया है, जो शुरू है, जिसका फ़ायदा क्या आप लोगों को हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लास्ट टाइम भी एडवोकेट अने साहब, सीनियर एडवोकेट अने साहब आए थे, उनका भी लेक्चर हुआ, उसमें भी हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी सानप साहब को हुआ और ऐसे कंटिन्यू चलती रहते हैं लेक्चर्स और इसका हमको बडिंग लॉयर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है। हमको नई नई चीज़ें पता चल रही है इस उपक्रम की वजह से, स्टडी सर्कल की वजह से, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा स्टडी सर्कल के मेंबर्स को कि जो ये सब प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, इससे जूनियर्स जो लॉयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है। जो कॉलेज इंटर्न्स है वो भी आ रहे हैं और उनको बहुत बेनिफिट्स हो रहा है इसका। बिल्कुल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है अतुल पांडे सर हो या सेक्रेटरी अमोल जलतारी जी हो और उनकी पूरी एंटायर टीम, ये जो कामकाज कर रही है ये सही में बहुत ही अच्छा कामकाज कर रही है, क्योंकि हर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है और ये वही मंच है। हाईकोर्ट बोले तो मात्र क्लाइंट्स, वकील इतना ही नहीं होता, उससे भी कई गुना अधिक बढ़कर यहाँ पे एक ज्ञान का मंदिर है। ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो नए लॉयर्स आते हैं, जो पढ़ना चाहते, बनना चाहते हैं, कुछ अपने ज़िंदगी का मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक संजीवनी बुटीक का कामकाज HBCA स्टडी सर्कल के माध्यम से, ऐसे कई जो प्रोग्राम्स है, इनके माध्यम से उन्हें एक अवेयरनेस और एक शिक्षित किया जा रहा है। ये सभी गौरव की बात है। और भी कुछ अधिवक्ता उनसे भी जानना चाहेंगे। सर ने तो कई ऐसी तमाम बातें कही है, आपको क्या लगता है? ये बात एकदम सही है कि सर ने बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसमें से सबसे अच्छी बात अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे अच्छी बात है कि हम एज एन अधिवक्ता, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सभी जूनियर लॉयर्स और साथ साथ जितने भी अधिवक्ता इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उन्हें ये जिम्मेदारी समझना होगा और इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा। ये सानप साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया और ऐसे स्टडी सर्कल के कार्यक्रम HCBA करते रहे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने इसे कई तमाम ऐसे कार्यक्रम करे और आज का भी ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार के तमाम अधिवक्ताओं से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यह प्रोग्राम अपने आप में कितना बड़ा है और बड़ा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस अंदाज में HBCA स्टडी सर्कल के जानिब से ये जो कामकाज हो रहा है, पिछले महाबेबी जो माह था वहाँ पर भी श्री M साहब आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ये तमाम वकीलों को जानकारी दी। उसके बाद में बड़े बड़े वकील लोग आए, जजेस आए, उन्होंने भी अपने अनुभव को शेयर किया। और इसी क्रम में आज बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सानप सर आए और उन्होंने जो अपने अनुभव को जो बयां किया, जिससे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कितनी शिद्दत से लोग उन्हें सुन रहे थे। उनके जो अनुभव है वो किसी बहुत बड़ा काम है, उनके लिए मेरे पास शब्द कम गिर रहे हैं। जब मैं भी सुन रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, तो एक टकी से लगी थी उनके पास, किसी बार उन्हें सुना जाए, क्योंकि इतनी अच्छी बातचीत और इतने अपने अनुभव को शेयर किया। और उनका ये कहना है कि कानून ये समंदर है, मगर समंदर में छलांग वही लगा सकता है जिसको समंदर में तैरना आता हो, और उसके लिए अपने पैर पतरे होना चाहिए। उसके लिए बड़े जो सीनियर्स ज्येष्ठ लॉयर्स जो होते हैं, जजेज जो होते हैं, वो जब भी कहीं उनका हियरिंग होता है तो वहाँ जाना चाहिए और वहाँ सुनना चाहिए, और इस प्रकार से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हुए अपने को खुद उस मंजिल तक लेके जाना, इतना खुद को बड़ा करना है कि कोई अगर पीछे से देखे तो बस आपके लिए दुआएं निकले। और यही कामकाज आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से ये किया जा रहा है। और विशेष तौर पे अतुल पांडे साहब हो या अमोल जलतारे सर हो और उनकी पूरी जो टीम है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये कहा जाता है। आज शहर के अधिकतम बच्चे कोई इंजीनियर होते हुए नज़र आ रहा है, कोई डॉक्टर होते हुए नज़र आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा आज के तारीख में अगर जो ट्रेड चल रहा है, जिनकी अपनी स्ट्रेंथ चल रही है, संख्या जो बढ़ी हुई है, वे अधिवक्ता होने के इस पर है। और आज बड़ी संख्या में, चाहे नागपुर शहर हो या विदर्भ हो, महाराष्ट्र हो या भारत देश हो, अधिक से अधिक युवा वर्ग ये अधिवक्ता बनना चाहते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप अच्छा एजुकेशन लो और इस समाज का कल्याण हो। यदि आप पढ़े लिखे रहोगे तो किसी भी ऊपर में, किसी के ऊपर में अन्याय अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानता को दूर करता है ज्ञान, और ज्ञान की रोशनी का नाम है नागपुर यानी मुंबई हाईकोर्ट HBCA स्टडी सर्कल का ये शानदार जानदार कार्यक्रम। नागपुर के HBCA ऑडिटोरियम से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर।